Assalamu alaikum students. So now we are moving towards the major portion of our chapter that are cholinergic agonists. The cholinergic agonists are the drugs that are responsible for favoring or potentiating the parasympathetic activity of acetylcholine in our body. Depending upon the mechanism of action of these drugs, they are classified into two major types: direct acting drugs and indirect acting drugs. Now, first of all, we should look towards the direct acting drugs. The direct acting drugs are also known as parasympathomimetics. Now, while they are known as parasympathomimetics, to answer this question, we should look into the mechanism of action of direct acting drugs. Now, consider this drug as a direct acting drug, and this is a cholinergic receptor, which may be either a muscarinic receptor or nicotinic receptor, which means that some of the direct acting drugs possesses affinity for muscarinic receptors, while some possesses affinity for nicotinic receptors, while some direct acting drugs possesses affinity for both muscarinic receptors and both nicotinic receptors. And as direct acting drug is acting on the cholinergic receptor, it results in triggering various intracellular pathways by the process of second messenger system. And as a result of these intracellular pathways, it results in the activation of the various parasympathetic responses in the effector organs, like decrease in heart rate in the case of the cardiac muscles, decrease in the blood pressure in the case of blood vessels, increase in the holding pressure in the case of the urinary bladder. Now moving back towards our question, which was that why direct acting drugs are also known as parasympathomimetics. So the word mimetics arise from mimic, और मिमिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हूबहू कॉपी करना. So as we have discussed in the mechanism of action of direct acting drug, ये जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं they produces the same parasympathetic effect as it is produced by acetylcholine. So we can say that direct acting drugs are mimicking the parasympathetic effect of acetylcholine, and for this purpose these are known as parasympathomimetics. We classify cholinergic agonists into two major groups. Number one, direct acting drugs, and the number two, indirect acting drugs. Now the direct acting drugs are further classified into two groups, that are choline esters, and the number two is alkaloid drugs. Now moving towards the choline esters, as the name indicates, that these are the drugs which contain ester linkage with the choline in them. To understand this concept, let us move towards the example. In the case of acetylcholine, the acetate molecule forms the ester linkage with choline to form acetylcholine. In the case of the bethanyl, carbamic acid forms the ester linkage with 2-methylcholine, resulting in the formation of cholinergic agonist drug, which is bethanyl. Now the next class of direct acting cholinergic agonist is alkaloid drugs. These are the drugs which are obtained from the plants and contain nitrogen in them. For example, pilocarpine. Up till now we have discussed about the classification mechanism of action of direct acting drug. Now let us discuss about indirect acting drug. Indirect acting drug is further classified into irreversible drugs and reversible drugs. While the reversible drugs are further classified into short acting drugs and intermediate acting drugs. Now let us discuss about the mechanism of action of indirect acting cholinergic agonist. जैसा कि नेम से इंडिकेट होता है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं वो डायरेक्टली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी वो डायरेक्टली
जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन है उसको फेवर नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना फंक्शन इनडायरेक्टली परफॉर्म करेंगे। वो अपना फंक्शन इनडायरेक्टली कैसे परफॉर्म करेंगे? दे वुड डू दिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इज एन एंजाइम that causes the degradation of acetylcholine molecule into two parts, acetate and choline। अब जब एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज का फंक्शन ही है द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो इंटरैक्ट एक्टिंग ड्रग ने तो जाके इनहिबिट ही करना है ना एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम को। एज अ रिजल्ट इट वुड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। और अगर एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन प्रिवेंट हो जाएगी, इट वुड रिजल्ट इन एक्यूमुलेटिंग द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। Accumulation of larger number of acetylcholine molecules in synaptic cleft means greater number of acetylcholine molecules affecting the effector organ, and hence increase in the intracellular response that results in increase in parasympathetic activity of acetylcholine। अब एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज कहाँ मौजूद होता है बॉडी में, ये भी देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पोजीशन में मौजूद होता है। अब ये बात तो समझ आ गई कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो किस तरह से एक्ट करती हैं। ऑब्वियसली बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम विच इज़ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज। लेकिन इस एंजाइम की इनहिबिशन किस तरह से होती है तो ये एंजाइम ही है, तो ये प्रोटीन ही। So it also possesses a specific binding site or an active site which is present on the enzyme। एक्टिव साइट है या बाइंडिंग साइट है, आमतौर पे इस पे आगे एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल एक्ट करता है और एज ए रिज़ल्ट एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज उस एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देते हैं इनटू एसिटेट एंड कोलिन। लेकिन अब इन द केस जब हम बॉडी में देंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, तो ड्रग्स आएंगी एंड दे वुड ऑक्यूपाई द बाइंडिंग एक्टिव साइट ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज, and hence it would result in the blocking of the active site for acetylcholine on acetylcholine esterase enzyme। अब एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी तो ऑब्वियसली एसिटाइलकोलिन वुडंट फाउंड एनी एक्टिव साइट टू बाइंड ऑन एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज, तो उसकी डिग्रेडेशन प्रिवेंट हो जाएगी। और डिग्रेडेशन अगर प्रिवेंट हो जाएगी इट वुड रिजल्ट इन द accumulation of acetylcholine in synaptic cleft and hence potentiating the activity of acetylcholine throughout the body। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ड्रग्स। ठीक है, तो रिवर्सिबल एज द नेम इंडिकेट्स कि उनका इफ़ेक्ट जो है, जो रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है उनका इफ़ेक्ट जो है वो रिवर्सिबल है, और जो इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं उनका इफ़ेक्ट हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा, जो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द ड्रग एंड एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम। रिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स के केस में क्या होगा कि weak linkage is formed between the indirect acting drugs and acetylcholine esterase enzyme। अब अगर रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की एक्टिव साइट के दरमियान इतना वीक लिंकेज होगा तो उसका इफ़ेक्ट तो इजीली रिवर्स किया जा सकता है। और उसका इफ़ेक्ट किस तरह से रिवर्स किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ताकि सबस्ट्रेट आके वापस एक्टिव साइट पे को ऑक्यूपाई कर ले और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है, जो रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, वो वहाँ से हट जाए। तो इस तरह से फिर रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का इफ़ेक्ट जो है वो वापस हटाया जा सकता है। जबकि इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल indirect acting drugs they form the covalent linkage with the binding active site on acetylcholine esterase। अब अगर कोवलेंट लिंकेज बन रही है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग
और एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की एक्टिव साइट के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। तो इस केस में चाहे आप जितनी भी सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर लें, इसका इफ़ेक्ट नलीफाई नहीं किया जा सकता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि फार्माकोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा जाए और वहाँ पे ड्रग्स मौजूद ना हो। ड्रग इज़ अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ फार्माकोलॉजी। So now we are going to discuss about the drugs which are included in direct acting drugs and the drugs which are included in indirect acting drugs। अब फार्माकोलॉजी में ड्रग्स याद करना मुश्किल काम नहीं है, इनको रिटेन रखना मुश्किल काम है। सो फॉर दिस पर्पस here are some mnemonics। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो हैं उसमें दो क्लासिफिकेशंस थी, एक कोलिन ईस्टर्स और दूसरे अल्कलॉइड ईस्टर्स। तो कोलिन ईस्टर्स में जो ड्रग्स इन्वॉल्व हैं उसके लिए एक सिफिक्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ कोल या कोलिन। यानी कि जो भी यहाँ पे ड्रग्स मौजूद होंगी उनके एंड में या तो कोल आ रहा होगा या कोलिन आ रहा होगा। एंड बाय एडिंग दिस फिक्स कोल या कोलिन टू दीज ड्रग वी कैन ईजिली रिटेन द नेम्स ऑफ कोलिन ईस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, बेथनी कोल, कार्बा कोल। एंड इन दिस वे हमें सिर्फ ये सिफिक्स याद रखना है, कोल या कोलिन, और ये 3 नेम्स याद रखने हैं, एसिटाइल, बेथनी एंड कार्बा। और यहाँ पे इजीली कोलिन ईस्टर्स के नेम रिटेन हो जाएंगे। अब जब इसकी आगे जो ड्रग्स के नेम्स लिखे हुए लाइक बेथनी कोल अगर है तो वो कौन कौन सी ड्रग्स में मौजूद होता है, उनके नेम भी इसी निमोनिक से हम याद रख सकते हैं। सिफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं हम, कोल या कोलिन। सो एसिटाइल कोलिन में हमारे पास जो ड्रग है दैट इज़ मायो कोल, यानी कोल सिफिक्स और यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है दैट इज़ मायो। बेथनी कोल, यहाँ पे भी सिफिक्स को क्या यूज़ हो रहा है, कोलिन, और हमने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है दैट इज़ यूरी कोलिन। इन द केस ऑफ कार्बा कोल सिफिक्स क्या है, कोल। एंड इन द सेम वे यहाँ पे जो ड्रग मौजूद है दैट इज़ आइसोप्टो कार्बा कोल और सिफिक्स क्या यूज़ हो रहा है, कोल। सो सिर्फ हमने कोल या कोलिन याद रखना है और द रिमेनिंग वर्ड्स याद रखने लाइक मायो, यूरी, आइसोप्टो कार्बा, और एंड में सिर्फ कोल या कोलिन ऐड कर दें। एसिटाइल, बेथनी, कार्बा, एंड में कोल या कोलिन ऐड कर दें। होप सो इट हेल्प्स। अब अल्कलॉइड ड्रग्स के लिए हमारे पास जो सफिक्स मौजूद है दैट इज़ आइन। 2 वर्ड्स ऐड करने, सीवीमी लाइन, पिलो कार्पाइन। और पिलो कार्पाइन में भी जो हमारे पास फर्दर ड्रग्स मौजूद है उसमें एंड में क्या आ रहा है, आइन, विच इज़ आइसोप्टो कार्पाइन। यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रग्स एक ड्रग रह जाती है सेलाजिन जो खुद याद करनी पड़ेगी। एंड इन द केस सीविमिलाइन एक ड्रग रह जाती है दैट इज़ इवोक्सैग, वो भी खुद याद करनी पड़ेगी। नाउ वी मूव टूवर्ड्स इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल ड्रग। तो इसके लिए हमारे पास जो सिफिक्स मौजूद है दैट इज़ माइन, MINE माइन। इसके साथ 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हमने ऐड करने हैं और यहाँ पे आधे से ज़्यादा इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल ड्रग्स प्रिपेयर हो जाएंगी। माइन एंड में ऐड करना है और ऐड करना है नियोस्टिक माइन, फाइसोस्टिक माइन, गैलेंटा माइन, पारिडोस्टिक माइन, रिवेस्टिक माइन। और यहाँ पे आखिरी जो ड्रग रह गई है उसके लिए हमें माइन्स फिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए सिर्फ आइन्स फिक्स ही काफ़ी है विच इज़ टाक्राइन। बाकी 2 ड्रग्स रह जाती हैं दैट आर एम्बिनोनियम एंड डोनिपेराजिल, वो उनके लिए कोई फिक्स मौजूद नहीं है तो ये खुद याद करनी पड़ेंगी। नाउ एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स याद हो गई हैं, सिर्फ चंद कुछ नेम्स रह गए हैं जिनके लिए कोई निमोनिक मौजूद नहीं है। So just remembering the few suffix या few mnemonic we can memorize almost all the drugs of this topic. Now you would ask कि यहाँ पे जो आगे लाइक एसिटाइल कोलिन के आगे रेड में लिखा है मायोकोल, बेथनी कोल के आगे लिखा हुआ है यूरिकोलिन। In the same way
कार्बाकोल के आगे लिखा है मायोस्टेट आइसोप्रोकार्बाकोल। तो ये रेड में जो हर मेन ड्रग के आगे ड्रग्स लिखी हुई हैं ये क्या है? सो एक्चुअली ये मार्केटिंग नेम है। लाइक हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन इज़ अ मोलिक्यूल। तो एसिटाइलकोलिन जो है वो किस तरह की ड्रग्स में मौजूद होगा? वो मायोकोल में मौजूद होगा। बेथनीकोल इज़ अ मोलिक्यूल, वो किस तरह की ड्रग्स में मौजूद होगा? वो यूरिकोलिन में मौजूद होगा। अब हम अगर फार्मासिस्ट के पास जाएं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें एसिटाइलकोलिन चाहिए या हमें बेथनीकोल चाहिए या हमें कार्बाकोल चाहिए, बिकॉज दीज आर ओनली द मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जिन ड्रग्स में मौजूद होंगे हमें वो वाली ड्रग्स चाहिए होंगी। सो हेयर वी आर मायोकोल विद अस। हमने क्या पढ़ा था कि मायोकोल जो है इसमें कौन सा होते हैं? एसिटाइलकोलिन, मतलब कि एसिटाइलकोलिन की हेडिंग में आगे रेड कलर का मायोकोल लिखा हुआ था, विच मीन्स कि मायोकोल इज़ अ ड्रग जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कंस्टिट्यूएंट्स में लिखा है कि इट कंटेन्स एसिटाइलकोलिन। सो हेयर वी हैव अ ड्रग मायोकोल, यहाँ पे ड्रग है और इसमें एसिटाइलकोलिन मौजूद होता है। एंड हेयर वी हैव अनदर टैबलेट नेम्ड एज यूरिकोलिन, और इसमें कौन सा कंपाउंड मौजूद है? बेथनीकोल। और हमने बेथनीकोल के आगे यूरिकोलिन में लिखा हुआ देखा था, मीन्स यूरिकोलिन इज़ अ टैबलेट जिसमें बेथनीकोल का कंपाउंड मौजूद होता है। Now here we have another example, that is tablet of myostate and it contains the molecule of carbachol. तो इस तरह से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ब्लैक हेडिंग्स के आगे रेड में नेम्स लिखे हैं that are actually the names of tablets. Now in next video we would be discussing about the various effects of cholinergic agonist. अब जैसे कि नेम से इंडिकेट होता है कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के जो इफ़ेक्ट्स हैं दैट आर पैरासिम्पथेटिक इफ़ेक्ट्स। सो उन इफ़ेक्ट्स को मेमोराइज़ करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर आप लिपनकोड के फिगर नंबर 3.3 में मौजूद ल्यू में गिवन पैरासिम्पथेटिक एक्शंस को मेमोराइज़ कर लेते हैं। चाहे बेथनीकोल हो, चाहे कार्बाकोल हो, चाहे पिलोकार्बाइन हो, उनका जो भी मोड ऑफ एक्शन होगा वो सब कुछ जो है इट वुड प्रोड्यूस द पैरासिम्पथेटिक इफ़ेक्ट्स। सेम इफ़ेक्ट्स जो है आई पे पैरासिम्पथेटिक इफ़ेक्ट्स, सेम इफ़ेक्ट्स ऑन एड्रेनल मेडुला एंड ऑन अदर इफेक्टिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इससे पहले आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की फर्दर डिटेल में जाएं। आप एक मरतबा लिपन के फिगर 3.3 में मौजूद पैरासिम्पथेटिक एक्शंस को एक बार मेमोराइज कर लें, और जब आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे पूरा टॉपिक ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, वी वुड डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन, इफेक्ट्स ऑफ बेथनीकोल, इफेक्ट्स ऑफ कार्बाकोल इन डिटेल। और कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ यही पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स होंगे, चाहे वो कोई भी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हो। So this is all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.